Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, crop production and management. Crops. When plants of the same kind are grown and cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. Crops are of mainly 4 types. देखिए जब एक किसी जगह पे एक किसी सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वो भी लार्ज स्केल में, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप यानी कि फसल. तो क्रॉप आपकी मेनली 4 टाइप्स की होती है. नंबर 1 फूड क्रॉप. इट इज ग्रोन for the production of food. Example, pulses, oilseeds, sugar and cereal crops. Number 2, cash crops. It is grown for commercial purposes. Means जिसको commercial purpose के लिए को यूज़ किया जाता है वो आपकी cash crops हैं, जिसमें आपका आता है जूट, sugar cane, cotton, rubber, etc. Number 3, plantation crop. Rubber, tea, coffee and spices are grown on plantation. So these cash crops are often called plantation crops. These are cultivated on a large scale. वैसे तो देखिए ये आपके जो है ये कैश क्रॉप्स हैं, बट इनको प्लांटेशंस में ग्रो किया जाता है, राइट? और इनको भी लार्ज स्केल में कल्टिवेट किया जाता है. नंबर 4, हॉर्टिकल्चर क्रॉप. Horticulture is a branch of agriculture that deals with the technology of growing plants. It deals with the cultivation of medicinal plants, fruit, vegetables, nuts, herbs, sprouts, mushroom, etc. Crops that are grown under the supervision of farmers in large fields are called cultivated crops. Crops can be classified on the basis of the season in which they grow and on climatic conditions, like temperature, humidity, rainfall vary from one region to another. हॉर्टिकल्चर आपकी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जो टेक्नोलॉजी के साथ आपका डील करती है. टेक्नोलॉजी ऑफ व्हाट? ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. तो जैसे इसमें आपका कल्टिवेशन होता है मेडिसिनल प्लांट्स का है, या फ्रूट्स है, या वेजिटेबल्स है, मशरूम्स हैं, राइट? क्रॉप्स अंडर सुपरविजन ग्रो किए जाते हैं. सुपरविजन, फार्मर्स की सुपरविजन के अंडर, वो भी लार्ज फील्ड्स में. और इनको हम सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं जिसमें वो ग्रो करते हैं, और या क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, राइट, एंड रेनफॉल. ये भी एक रीजन से दूसरे रीजन आपका वेरी करता है, राइट? नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. To get a better yield quality-wise, a farmer follows several practices over a period of time. These are the basic practices. Number 1, soil preparation for cultivation by plowing. Number 2, sowing seeds with the help of seed drill, plows or hand sowing. Number 3, adding fertilizers or manures with the help of drill or manually. Number 4, irrigation by tube wells or sprinklers. Number 5, weeding by khurpa or harrow or by using weedicides. Number 6, crop protection by spraying of pesticides, insecticides, etc. Number 7, harvesting with the help of sickle and harvesters. Number 8, threshing by threshers, animals or combines. And number 9, storage in silos and granaries. अगर देखिए फार्मर्स चाहते हैं कि एक बेटर यील्ड हो क्रॉप की क्वालिटी वाइज भी, तो कुछ प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे सॉइल का प्रिपरेशन करना है कल्टीवेशन के लिए. सॉइल प्रिपेयर कैसे होगी? प्लाउइंग से. फिर बीज को बोया जाता है, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं, राइट? और फिर इरिगेशन की जाती है. इरिगेशन यानी पौधों को पानी दिया जाता है या क्रॉप्स को पानी जो दिया जाता है. वीडिंग की जाती है, कोई भी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें निकाला जाता है, राइट? क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करके. हार्वेस्ट किया जाता है जैसे आपकी क्रॉप में चौर होती है. फिर थ्रेशिंग की जाती है, ओके, और उसके बाद उनको सिलोज और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, राइट? सो ये आपके बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, राइट? नंबर 1, सॉइल प्रिपरेशन. ओके, तो पहला जो बेसिक आपका प्रैक्टिसेस है वो है सॉइल प्रिपरेशन, राइट? इट इज द फर्स्ट स्टेप. इट एंकर्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द roots. Microorganisms, snails, earthworms and other organisms live in the soil and make it fertile. The quality and yield of crops depend on the type of soil. Soil preparation involves the following 3 steps. Soil preparation आपका पहला स्टेप होता है, ओके? और जैसे कि आप ये रूट जो होती प्लांट्स को उनको एंकर करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या अर्थवर्म या स्नेल जो है जो या जो भी ऑर्गेनिज्म जो आपके सॉइल में रखते हैं उसको फर्टाइल बनाते हैं, ओके? तो जो क्वालिटी क्रॉप की होती है या जो यील्ड होगी क्रॉप की वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सॉइल में, ओके? अब सॉइल प्रिपरेशन में भी आपके काफ़ी 3 स्टेप्स हैं. नंबर 1 इज प्लाउइंग. What is plowing? Process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow.
If the soil is very dry, then watering is very much required before plowing. It makes the soil aerated. Manure is added to the soil before plowing. Plowing is done by using a plow drawn by blocks or driven by a tractor. Plowing by tractor is much faster and efficient. In earlier days, plows were made of irons, bones, of stones, but nowadays farmers use iron or wooden plows. देखिए, आपके सॉइल प्रिपरेशन में आपका पहला स्टेप आता है प्लाउइंग का, यानी कि लेवल करने की बारी आती है सॉइल को, उसको लूज करना होता है, ठीक है, सॉइल को टर्न करना होता है, दैट इज नोन एज टिलिंग और प्लाउइंग. ओके, तो ये प्लाउ की हेल्प से किया जाता है. इसके बाद अब देखिए, पहले क्या होता है, पहले के टाइम पे लोग मैनुअली करते थे, मतलब आयरन या वुडन प्लाउ का यूज़ करते थे और ब्लक्स का यूज़ करते थे, बट आज के टाइम पे ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा फास्टर भी है और एफिशिएंट भी है. टूल्स फॉर प्लाउइंग. अच्छा देखिए, अब प्लाउइंग के टूल्स क्या हैं? Various tools like plow, hoe and cultivator break soil to the size of grains. This helps in proper mixing of manure with soil and also increases the yields both quality and quantity wise. अब जैसे टूल जो आपके रिलेटेड है प्लाउइंग से, राइट, जैसे हम इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं, सॉइल को ब्रेक करते हैं ग्रेन्स की साइज में. ओके, इससे कि क्या होता है कि मैन्यूर का अच्छे से मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ और इससे फिर आपकी यील्ड भी इंक्रीज होती है. प्लाउ. Wooden plow is being used from ancient times, but now it is replaced by iron plows. It is very much helpful in tilling the soil, adding fertilizer and manure in the soil, removing weeds and scraping of soil, etc. It is made of wood and drawn by a pair of oxen, horses or camels, etc. It contains two parts. Plowshare, made by strong triangular iron strip and plow shaft, a long log of wood having a handle at one end, at another end is attached to a beam which is placed on the animal's neck. One pair of oxen and a single man can easily operate the plow. वुडन प्लाव आपके देखिए एंशियंट टाइम से इनको यूज किया जा रहा है, बट आज के टाइम पे इनकी जगह ले ली है आयरन प्लाव ने. ओके, अच्छा देखिए, अब जैसे आपके इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, राइट. आपका एक होता है प्लाउशेयर जो कि आपका होता है स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और एक होता है प्लाउशेफ्ट, एक लॉन्ग लंबी सी वुड का लॉग होता है जिसमें हैंडल होता है एक एंड पे और दूसरा वो बीम अटैच होता है एनिमल्स के नेक से, और फिर इस वन पेयर ऑफ ऑक्सन या सिंगल मैन इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं. हो. नेक्स्ट टूल इज हो. It is used for removing weeds and for loosening soil. It has a long rod of wood or iron. A broad bent and strong iron plate is attached to one end of rod. It works like a blade and is pulled by animals. हो का यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए. ओके, वीड्स आपके होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो अपनी मर्जी से उग जाते हैं. ओके, उन्हें कोई बोता नहीं है, और इसका यूज किया जाता है उन वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को आपका लूज करने के लिए. ओके, दिस इज द हो. एक ब्लेड की तरह काम करता है और इसके एनिमल्स को पुल करते हैं, राइट. नेक्स्ट, कल्टीवेटर. Nowadays, plowshare consists of a series of blades known as cultivator. Cultivators are attached to the tractors to plow the field and help in saving time and energy. अब आज के टाइम पे क्या होता है, जो प्लाउशेयर होता है उसमें आपका सीरीज होता है ब्लेड्स का, जिसे हम कहते हैं कल्टीवेटर. तो ये ट्रैक्टर के साथ अटैच होते हैं टू प्लाउ द फील्ड को प्लाउ करने के लिए, एंड ये बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी को सेव करते हैं, राइट. नंबर 2, लेवलिंग. Plowed field have big pieces of soil called crumbs. It is very much required to level the soil before sowing seeds. This is done by using a leveler. This helps the soil to mix easily. Leveling makes the soil more fertile and aerated. अब plowed field है, फील्ड की प्लाउइंग हो गई है, राइट. अब उसमें बड़े बड़े आपके क्रम्स होते हैं सॉइल के, तो उनको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, राइट, सीड को सो करने से पहले. तो ये किया जाता है लेवलर की हेल्प से. नंबर 3, मैन्यूरिंग. Manure or fertilizer is added to the soil to increase the fertility before the seeds are sown. बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें, तभी तो अच्छी क्रॉप आपकी हो पाएगी, राइट. नंबर 2, सोइंग सीड्स. ओके, अब नंबर 2 जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में है वो है आपका सोइंग सीड्स. सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड डिसीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर गेटिंग अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. जब भी आप क्रॉप को सो करते बोते हैं तो सबसे पहले सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज फ्री होने चाहिए, राइट. It is the process of putting seeds in the moist soil at a proper depth and at a proper distance. Seeds can be sown manually or by using seed drills. Broadcasting is the process in which we sow the seeds manually, but in this process seeds are unevenly distributed in the field.
In mechanical method, sowing is done by a seed drill. The seed drill makes furrows in the soil and seeds fall into it at a regular distance and at a proper depth. So mechanical method is better for sowing seeds. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. ये आपका जो सोइंग का प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, आपके सीड्स को डाला जाता है मॉइस्ट सॉइल में एक प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पे. ओके, मैनुअली भी किया जाता है इसको, आप सीड्स को मैनुअली भी कर सकते हैं या सीड ड्रिल्स का यूज़ कर सकते हैं. ब्रॉडकास्टिंग एक आपका प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स को मैनुअली सो किया जाता है, बट इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फील्ड में. अब मैकेनिकल मैथड है जो जिसमें हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, ये आपका बेटर होता है क्योंकि ये सीड जो एक रेगुलर डिस्टेंस पे जाते हैं, प्रॉपर डेप्थ पे जाते हैं. राइट. टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स. अच्छा, अब बीज बोने के लिए आपके कौन से टूल्स यूज होते हैं? देखिए, सबसे पहले है आपका ट्रेडिशनल टूल. इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन ट्यूब विद अ funnel at the top. This tube is connected with 3 or more pipes having sharp ends. This tool is tied to the back of plow and seeds are filled into the funnel. Pointed ends of its pipes pierce into furrows made by plow and deposit the seeds into the soil. इसमें आपका आयरन ट्यूब होता है, फनल होता है इसके टॉप में. राइट. फिर ये ट्यूब जो है कनेक्टेड होती है 3 या उससे ज़्यादा पाइप्स के जिसके शार्प एंड्स होते हैं. फिर स्टूल को आपका बांध दिया जाता है बैक ऑफ द प्लाउ एंड फिर सीड्स को फिल किया जाता है फनल में. जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके पॉइंट्स के, वो फिर क्या करते हैं, दे प्योर्स इनटू फुरोज जो आपका प्लाउ बनाता है. राइट. एंड फिर सीड डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल में. राइट. नेक्स्ट, सीड ड्रिल. अभी हमने जो बात की थी वो ट्रेडिशनल टूल की थी. एंड सीड ड्रिल, नाउअडेज वी आर यूजिंग सीड ड्रिल ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर. इट हैज 5 to 6 पाइप्स अटैच्ड टू ए फनल. It sows the seeds uniformly at proper distance in depth. It ensures that the seeds get covered by the soil after sowing. It saves time and labor and seeds are not eaten by birds also. आज के टाइम पे देखिए सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है जो कि ट्रैक्टर से ड्रिवन होता है. इसमें 5-6 पाइप्स अटैच होते हैं फनल पे और ये इससे क्या होता है कि जो आपका प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रॉपर डेप्थ पे सीड्स जाते हैं, यूनिफॉर्मली जाते हैं, इवनली जाते हैं. राइट. और ये भी इंश्योर करता है कि सीड जो है जैसे ही वो सो हो गए उसके बाद वो सॉइल से कवर हो जाए. राइट. और ये हमारा काफ़ी सारा टाइम बचाता है. नंबर 3, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, अब हमने बीज भी बोल लिया, अब बारी आती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करने की. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स. दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers add manure and fertilizers to replenish the soil with nutrients. Manuring is done first before sowing the seeds and then at frequent intervals after the plants have grown. Short-term benefits of using fertilizers and long-term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production. Manure and fertilizers आपके plant nutrients होते हैं, right? बहुत ही ज़रूरी होते हैं plant की growth के लिए. Okay? आप देखिए, आप कंटिन्यूसली एक फील्ड में आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो फिर वो सॉइल क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाएगी. इसीलिए फार्मर्स मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश हो सके. ओके. मैन्योरिंग को किया जाता है सोइंग से पहले. ओके. और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में किया जाता है उसके बाद जब प्लांट्स को आप ग्रो कर देते हैं. ओके. प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट, फार्म, यार्ड मैन्योर. Farmers dump plant and animal waste in a pit made at an open place and allow it to decompose. Farmers spread dry leaves at the bottom and deposit kitchen waste, vegetable refuse, farm litter, weeds and sugarcane trash. They spray a little water to make it moist and add animal waste and other organic matter till the pit is full. Now they cover the top layer with wet soil. To bring it to the level and spray water sometime to keep the waste moist. After about 70 to 80 days, the waste will be decomposed by the action of microorganisms and compost will be ready. Nowadays, we are also using human waste in it. Okay. अब देखिए मैन्योर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फार्मर्स. जैसे कि प्लांट वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, एक पिट में उसको आपके डंप कर देते हैं. राइट. और फिर उसको डिकम्पोज होने देते हैं. सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं, बॉटम में ड्राई लीव्स को स्प्रेड करते हैं. किचन वेस्ट उसमें डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं या वेजिटेबल जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं. राइट. फार्म लिटर है, वीड्स है, शुगर केन ट्रेस है. राइट. इसके बाद थोड़ा सा पानी स्प्रे करते हैं जैसे मॉइस्चर है. इसके बाद एनिमल वेस्ट को यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं दूसरा जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब तक कि पिट फुल ना हो जाए. फिर उसको टॉप लेयर को वो कवर कर देते हैं वेट सॉइल से. ओके.
फिर उसको वेस्ट को मॉइस्ट रखा जाता है, फिर लगभग 70 से 80 दिन के बाद वेस्ट जो है आपका डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और आपका कंपोस्ट अब रेडी है। आजकल वैसे जो फार्मर्स है ह्यूमन वेस्ट भी इसमें यूज कर रहे हैं, राइट। अदर मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल। अब दूसरे क्या मेथड्स हैं, अगर हमें मन्यूर या फर्टिलाइजर्स नहीं ऐड करना है लेकिन हम चाहते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाए, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, in this cropping system a farmer grows 2 or more crops simultaneously on the same piece of land, example wheat and gram or wheat and mustard of groundnut and sunflower. This reduces the risk and gives some insurance against failure of one of the crops. मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, सेम फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को बोया जाता है, जैसे कि वीट के साथ ग्राम चना, वीट या मस्टर्ड, ग्राउंडनट या सनफ्लावर। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर मतलब कोई एक फसल खराब भी हो गई तो बाकी तो आपकी रहेंगी, राइट। इंटरक्रॉपिंग। In this cropping system, a farmer grows 2 or more crops simultaneously in the same field in a definite pattern. A few rows of one crop alternate with a few rows of a second crop. Example, soyabean and maize or bajra and lubia. The crops are selected such that their nutrient requirements are different. This ensures maximum utilization of the nutrients applied and also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. देखिए इसमें भी क्या होता है कि एक सेम लैंड में, राइट, सेम फील्ड में क्या किया जाता है, 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता है। बट हाँ, रोज होती हैं अलग अलग, एक पैटर्न में होता है। जैसे कि एक पैटर्न में जैसे ये सोयाबीन, राइट, ये रो है, ये आपकी सोयाबीन की है। ओके, अगली जो रो है आपकी वो बाजरा की है, या जो मेज है वो इस तरह से, एक डेफिनेट पैटर्न होता है, राइट। और ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसे क्रॉप्स को चूज किया जाता है कि जिनके न्यूट्रिएंट जो आपका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो। मींस सोयाबीन की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो वो बाजरा की ना हो, राइट, या सोयाबीन की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो वो मेज की ना हो। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। In this cropping system, a farmer grows different crops on a piece of land in sequenced season. It is done for different crop combinations. Availability of moisture and irrigation facilities decides the choice of the crop to be cultivated after one harvest. If it is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest. क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक पीस ऑफ लैंड में, ओके, वो भी सीक्वेंस्ड सीजन में। ये डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मतलब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉप को कल्टिवेट करना है एक हार्वेस्ट के बाद। मतलब कि एक, जैसे कि आपका एक फील्ड है, उसमें आपने एक फसल काट दी, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, अब नेक्स्ट कोई और फसल को बोया जाता है, राइट। फील्ड फैलो, इट मीन्स लीविंग द फील्ड टू रेस्ट फॉर अ सीजन आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप। यानी एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, अब थोड़े टाइम के लिए, एक सीजन के लिए उस फील्ड को रेस्ट पे छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो सके, राइट। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स। एजोबैक्टर and mycorrhiza are used to prepare biofertilizers which improve soil fertility. आज के टाइम पे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट, लिग्यूमिनियस प्लांट्स। Leguminous plants contribute to the soil about 150 to 170 kg per acre of nitrogen. They have nitrogenous bacteria in their root nodules, which fixes atmospheric nitrogen into useful nitrates and nitrites by the process of nitrogen fixation. It is a process where atmospheric nitrogen is converted into ammonium. The process is known as ammonification, and thus ammonia is converted into nitrates and nitrites. Nitrification. This process is also known as nitrogen cycle. लिग्यूमिनियस प्लांट्स जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल में, आपका लगभग 150 से 170 किलो पर एकड़ ऑफ नाइट्रोजन, राइट। क्योंकि इनके रूट नोड्यूल्स में आपके नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनटू यूजफुल नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यानी कि N2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपकी कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम में, ओके। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम इज NH4। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। एंड फिर ये जो अमोनिया है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज
नाइट्रिफिकेशन, ओके। और ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल भी है ये प्रोसेस, राइट। तो देखिए आपकी जो नाइट्रोजन साइकिल दी गई है किस तरह से आपका देखिए, सबसे पहले आपका नाइट्रोजन इन एयर, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ओके। बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स में रहता है उसे फिक्स करता है, ओके। फिर इसके बाद जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो भी कन्वर्ट करते हैं, उसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं। प्लांट्स के बाद आपका जो एनिमल्स उन्हें खाते हैं, राइट। कुछ टाइम के बाद जो बैक्टीरिया वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज को, ये प्लांट्स के एनिमल्स के, फिर वो नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेयर पे रिलीज करते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन आपकी वापस से एयर में चली जाती है, राइट। नंबर 4 इज इरिगेशन. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. Everybody knows that, right? It is absorbed by roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed by roots. Plants contain nearly 90% water. The process of watering crop plants in the field of different intervals is called irrigation. In our country, farmers still depend on rainwater for irrigation, but it does not provide the right amount of water at right time. Time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. In summers, rate of evaporation is high from the soil and leaves, so frequency of watering is high. Irrigation आपका होता है watering the plants. Plants को water करना means irrigate करना, okay? अब प्लांट के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी को पता है. प्लांट्स में एक्चुअली 90% आपका वाटर होता है, राइट. हमारे कंट्री में जो फार्मर्स हैं अभी भी वो इरिगेशन के लिए वो रेन वाटर पे डिपेंडेंट है, लेकिन बारिश जो है वो राइट टाइम पे तो नहीं आती है, ना ही वो राइट अमाउंट में आती है. और इसके अलावा जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी होता है इरिगेशन का वो वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप. किसी क्रॉप में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी में कम की ज़रूरत होती है. सॉइल टू सॉइल भी डिफर करता है, सीजन टू सीजन भी डिफर करता है. जैसे समर की बात करें तो गर्मी होता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होता है, तो इस टाइम पे वाटरिंग यानी इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, राइट. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. Traditional means of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Water is lifted up from these sources by different methods. Cattle and human labor is used, so these sources are cheaper and less efficient. For example, pulley system, moat, chain pump, dhekli and lever system, red. Diesel, biogas, electricity and solar energy are used to run the pumps. Okay. So देखिए sources of irrigation मतलब किन sources का use करते हैं. Of course आपके पास जो traditional मीन्स है लाइक ट्यूब वेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वेल्स है, राइट. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड्स में आप क्या आते हैं आपके देखिए फूरो इरिगेशन. नंबर 1 इज फूरो इरिगेशन. Water enters the field through furrows or channels made between two rows of crop plants. Crop is planted on ridges. इसमें water जो है वो enter करेगा फील्ड में फूरोज के थ्रू, यानी जो चैनल्स बने होते हैं दो रोज के बीच में, जो क्रॉप प्लांट के दो रोज होते हैं उनके बीच में, राइट. Basin irrigation. It is utilized only for paddy crops. The entire field is filled with water and made over flooded. Basin जो irrigation है वो सिर्फ और सिर्फ paddy crops के लिए यूटिलाइज की जाती है. इसमें क्या होता है कि फील्ड को पूरा पानी से भर दिया जाता है, मतलब उसको ओवर फ्लडेड कर दिया जाता है, राइट. नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम. बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है. क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं. दिस सिस्टम इज यूटिलाइज्ड व्हेन लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. Perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to main pipelines at regular intervals. When water flows through the main pipe under pressure, it escapes from the rotating nozzles as a sprinkled, as raining on the crops. It is very useful for sandy soil. Okay. अब इस सिस्टम का यूटिलाइजेशन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे लैंड अनइवन होती है और जहाँ पे पानी सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता है. परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, इनमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप में जो आपके मेन पाइपलाइन से आपके जॉइंट होते हैं. ओके. जब वाटर फ्लो करता है मेन पाइप से अंडर प्रेशर तो फिर ये जो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ना, आपने जनरली देखा होगा गार्डन्स में भी लोग इसको लगाते हैं ग्रास को वाटर करने के लिए. ओके. तो रोटेटिंग नोजल्स फिर वो पानी को स्प्रिंकल करते हैं जिससे बारिश आ रही हो. ओके. ये सैंडी सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपका वाटर भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है. Water falls drop by drop just as the position of the roots. It is applicable for fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all and plants get regular water supply.
इट्स अ boon in regions where availability of water is poor. इसमें देखिए जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, वो भी ठीक रूट की पोजीशन पे, ओके और ये वाटर इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, रेगुलर वाटर सप्लाई इसमें प्लांट्स को मिलता है और ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो पुअर है, ओके। नंबर 5, वीडिंग. Removal of weeds, unwanted plants may grow naturally along with crop from the field without harming the crop plants is called weeding. Weeds compete for nutrients, water, sunlight and space with the crop plants and affect their growth. Weeds may produce toxic substances that interfere with the growth of crop plants. It may be poisonous to humans and domestic animals. देखिए जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं आपके वीड्स, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ compete करते हैं, ओके न्यूट्रिएंट्स उनके हिस्से का ले लेते हैं या वाटर है या सनलाइट है, ओके और कई बार वीड जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करते हैं, ओके और ये ह्यूमंस के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं. वीडिंग बाय यूजिंग इक्विपमेंट. अब वीडिंग करते हैं equipment की help से. Plowing before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. After drying, these weeds get mixed with the soil. A comb-like implementation called harrow or rake is also used for this purpose. Field में आपके crops को sow करने से पहले plow किया जाता है, तो उस टाइम पे भी जितने भी weeds होते हैं वो uproot हो जाते हैं, ओके फिर ड्राई होने के बाद ये मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, तो इसके लिए comb-like implementation जिसे कहते हैं harrow या rake उसको यूज़ किया जाता है, ओके. Hand pulling. Weeds can be removed by pulling them out by hand or by using a trowel. मतलब आप हाथ से उसे निकाल सकते हैं या ट्रॉवल से निकाल लीजिए. Using weedicides. Weedicides kill the weeds. Example 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D-MCPA, 4-chloro-2-methyl-phenoxyacetate acid, butachlor. These weedicides are sprayed in the fields after diluting with water to kill the weeds. They do not damage the crops. Okay. आज के टाइम पे जो यूज़ होता है वो weedicides होते हैं, ओके ये क्या करते हैं, weeds को किल कर देते हैं. इनको डाइल्यूट किया जाता है पहले वाटर के साथ, फिर स्प्रे किया जाता है, बट ये जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसे डैमेज नहीं करते, राइट. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मैथड. Cochineal insect is used to eliminate prickly pear or opuntia from the crop field. This insect is a natural enemy of weeds and feeds on them. Scientists are trying to find natural or biological ways of controlling weed plants, pests and diseases. एक insect है आपका, तो ये क्या करता है कि ये prickly pear को eliminate करता है, ओके और ये क्या है, ये natural enemy है weeds का और उनको खाता है, राइट. तो साइंटिस्ट अब ट्राई कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल या जो बायोलॉजिकल वेज हैं उनको वो ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का, जिससे कि वीड प्लांट्स को कंट्रोल किया जा सके, पेस्ट एंड डिसीज को कंट्रोल किया जा सके, राइट. नंबर 6, क्रॉप प्रोटेक्शन. ओके अब हमने वीडिंग कर ली, अब बारी आती है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की. Rodents or rats and insects like locusts, weevils, termites, etc. eat or damage the crops. Okay, अब देखिए क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत लोग हैं. इंसेक्ट हो गए, आपके rodents हो गए, इसके अलावा locusts fly in swarms and eat leaves of sugarcane or wheat crops. Stem borers bore holes in the stem. Termites eat roots. Bacteria, fungi, and viruses cause several diseases. For example, fungi cause rust and smut in wheat and blight in potatoes. Bacteria cause wilt in plants in which xylem vessels block and cannot transport water. Plants die due to lack of water. We use chemical control in which we spray the chemical substances in the ground by hand-operated machine. These chemicals kill insects and pests. The following chemicals are used. Number 1, insecticide, example DDT, that is dichloro-diphenyl trichloroethane. BHC, benzene hexachloride, commonly known as gamexine, malathion, etc. Number 2, fungicides, example sulfur, copper sulfate. 3, rodenticide, example zinc phosphide, warfarin. लोकस्ट आपका एक इंसेक्ट होता है और जब ये आता है तो ये झुंड में आता है, ओके और उसके बाद क्रॉप को डैमेज करता है, ओके जैसे शुगर केन की जो क्रॉप है. इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस हैं, इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. फंगी की वजह से रस्ट एंड स्मट हो जाता है वीट में, पोटेटोज में ब्लाइट हो जाता है. बैक्टीरिया की वजह से प्लांट जो है विल्ट मुरझा जाते हैं क्योंकि उनके जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, राइट. तो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं
जिससे कि हैंड ऑपरेटेड मशीन के थ्रू ये केमिकल्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को मार देते हैं। ओके, जैसे कि आपके कॉमन एग्जांपल है इंसेक्टिसाइड्स के, फंगीसाइड के एंड रोडेंटिसाइड्स, राइट। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स यूज करने के एडवांटेजेस, नंबर 1, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस बिकॉज द केमिकल किल्स पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। अब पेस्टिसाइड क्या करते हैं, पेस्ट और इंसेक्ट को किल करते हैं, तो वो हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाते, जिससे कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, राइट। Number 2, it improves quality because crops are not half eaten by them and there are no bores and holes in them. ये quality को भी improve करता है, right? Disadvantages of using pesticides. अब इसके advantages के साथ साथ कुछ disadvantages भी हैं, वो क्या हैं? Number 1, these chemicals can enter in the food chain and reach from first trophic level to last trophic level. Number 2, at the top level, the concentration is too high. They affect the body immune system, causing irritation in skin and affect the respiratory system of human beings. सबसे पहले तो जो केमिकल्स हैं ये आपके फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, पहले ट्रॉपिक लेवल से लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक, ओके। और टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इरिटेशन हो जाता है स्किन में, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसको अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स के, राइट। नंबर 7, हार्वेस्टिंग। अब हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर लिया, अब बारी आती है हार्वेस्टिंग की। कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज रेडी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब आपकी क्रॉप रेडी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब बारी आती है उसको हार्वेस्ट करने की, तो इससे मैनुअली भी किया जाता है, या मशीन के थ्रू भी किया जाता है, राइट। नंबर 8, थ्रेशिंग। Threshing is the process in which we separate grains from the cut crop. In manual harvesting, threshing is done by making oxen or buffaloes trample over the cut crop. Nowadays, we are also using a machine called thresher for this process. Combine is a machine which is used for both harvesting and threshing. Winnowing is a process in which we separate grains from the chaff. It can be done manually with the help of wind. We drop mixture, chaff and grains on the ground from a height. Heavier seeds get separated from the lighter chaff as the lighter chaff is blown away by the wind and falls at a distance. Stem of crop is cut into small pieces and used as cattle fodder. Threshing का मतलब क्या है कि grains को cut crop में से separate करना. तो मैनुअल हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है कि ऑक्सन है या बफलोज जो हैं वो कट क्रॉप के ऊपर उनको चलाया जाता है, ओके। लेकिन आज के टाइम पे हम मशीन्स का यूज़ करते हैं जिन्हें कहते हैं थ्रेशर, ओके। कंबाइनिंग मशीन होता है जिसमें आपकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों ही होती है। इसके बाद देखिए विनोविंग एक प्रोसेस होता है जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट। एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन्स को चैफ से अलग किया जाता है, ओके। एक हाइट से उनको गिराया जाता है और आपका क्योंकि ग्रेन्स आपके हेवियर होते हैं तो वो वर्टिकली इस पोजीशन पे जाते हैं, जबकि चैफ क्योंकि लाइट होता है तो उसका ढेर दूसरी अलग जगह पे लग जाता है, ओके। एंड स्टेम जो होते हैं क्रॉप के फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके दिया जाता है। ये आपके कैटल का बनता है फॉडर यानी कि चारा, राइट। नंबर 9, स्टोरेज, ओके। अब आपने थ्रेशिंग भी कर लिया, राइट। अब बारी आती है अपनी क्रॉप्स को स्टोर करने की। Before storage, the grains have to be dried to prevent the growth of microorganisms. They are dried in the sun and then packed in bags or bins before storing in granaries. This helps to reduce to some extent the damage caused by rodents. The granaries must be kept free of pests, so various pesticides are sprayed on them. As our farmers depend a lot on rainfall, some stocks of grain must be maintained to compensate for shortfall due to failure of monsoon in a particular year. This is known as buffer stock. अब देखिए आपने थ्रेशिंग कर ली, उसके बाद आपके पास सीड्स मिल गए, ओके। आपकी क्रॉप के जो भी सीड्स हैं, लेकिन इन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, एज इट इज़ नहीं स्टोर करते, पहले इनको सुखाया जाता है, ओके, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके। इनको सन में ड्राई किया जाता है, फिर इनको बैग्स में या बिन्स में इनको पैक किया जाता है, ओके। फिर इनको ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, ओके। इससे क्या होता है कि जो ड्रॉडेंट्स की वजह से जो डैमेज होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, ओके। फिर इन ग्रेनरीज को पेस्ट फ्री रखा जाता है, इसीलिए पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। अब देखिए हमारे फार्मर्स जो ज़्यादातर हैं वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि रेन आपकी हर साल तो एक जैसी नहीं आती, कई बार कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, तो कुछ स्टॉक्स जो है ग्रेन का उसको मेंटेन करना पड़ता है कि अगर कोई कमी हो भी गई बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मानसून किसी पर्टिकुलर ईयर में तो उसको कॉम्पनसेट किया जाए, तो इसे हम कहते हैं बफर स्टॉक, right? High yielding and disease resistant crops with other required attributes are being developed to increase food production, especially in our country to cope with the growing population.
New varieties of crops with required attributes are developed by a process called hybridization, in which scientists select two varieties of crop, each having at least one of the desired characteristics, such as high yield, resistant to disease, etc. Cross breeding between the two varieties is done to develop a variety which has all the desired characteristics. अब देखिए फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, स्पेशली इन आवर कंट्री पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे. तो इसीलिए हमें चाहिए कि क्रॉप जो है उनकी हाई यील्ड हो, राइट. तो इसीलिए जो न्यू वैरायटीज़ है क्रॉप्स की जिसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, जिनको डेवलप किया जाता है उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में साइंटिस्ट जो है दो क्रॉप्स की वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं और एटलीस्ट मतलब उनमें एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब कि हाई यील्ड हो और रेजिस्टेंट टू डिसीज, यानी उसमें डिसीज ना लगे, राइट. तो क्रॉस ब्रीडिंग जब होता है दो वैरायटीज़ का, उससे फिर एक नई वैरायटी मिलती है जिसमें वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मतलब अब जो नई कैरेक्टरिस्टिक है, जो नया आपका ब्रीड आई है, उसमें क्या होगा, वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा और उसमें हाई यील्ड भी होगा, राइट. फूड फ्रॉम एनिमल्स. Animal food is rich in protein and is a source of carbohydrates and fats also, you know that. Animal husbandry. Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care to improve their breed and to meet the demands of a growing population. 4 important factors of animal husbandry are breeding, feeding, weeding and heating. अब देखिए अगर आप एनिमल्स को पाल रहे हैं अपने घर में या फार्म में, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करें और शेल्टर प्रोवाइड करें, केयर प्रोवाइड करें, जिससे कि उनकी ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सके, ओके, और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स को पूरा किया. तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब कि एनिमल्स को पालने की जो आपकी प्रैक्टिस है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, ओके. सो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग एंड हीटिंग. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.